Ma'am, मैं तो speech. Yes. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Yes. Today is 2nd October, and you know the importance of 2nd October. आप सबको पता है कि 2nd October को क्या हुआ Yes, था. ma'am. हमारे दो बहुत बड़े great leaders, they were born on 2nd October. सबसे पहले तो महात्मा गांधी और दूसरे कौन थे बताइए? लाल बहादुर शास्त्री. Very good. लाल बहादुर शास्त्री. So Gandhi Jayanti is celebrated on 2nd October every year to mark the birth anniversary of the most prominent leader of the Indian independence struggle. And you know the name, Mahatma Gandhi. और popular movements of Mahatma Gandhi were कौन-कौन से you know? क्या-क्या उनके popular movements कौन-कौन से थे? Yes, ma'am. हाँ, कौन-कौन? Ma'am, Dandi March, Quit India movement. Non-cooperation movement. Non-violent Ma'am, Salt movement. movement. हाँ, Simon Dandi march हो गया, Go उसमें back Dandi march. फिर अब the important thing is why is 2nd October a national holiday? 2nd October को हम national holiday क्यों मानते हैं? किसी को पता है? मैम नॉन वायलेंस डे इस दिन बनाते हैं, यूनाइटेड नेशंस ने कर रखा है. और महात्मा गांधी is also known as father of the nation, है ना? To mark him respect, it is celebrated as 2nd October. और अभी जो हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने 2nd October को क्या किया था ये बताइए? स्वच्छ भारत अभियान. क्या स्टार्ट किया था? स्वच्छ भारत अभियान. तो आप सब लोग उसको फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं? यस मैम. अपने घर में ही करते हैं? हाँ, यस. वेरी गुड. Yes, ma'am. और लाल बहादुर शास्त्री, the second great leader was लाल बहादुर शास्त्री, and he was also an Indian politician. वो भी एक Indian politician थे who served as the second prime minister of India. वो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे. ठीक है? He promoted, और उन्होंने क्या क्या काम किया था? He promoted white revolution. और white revolution किसके लिए था? To increase the milk supply. He was a very simple and very great leader. You all know about him. So today 2nd October is celebrated as the birth anniversary of both Mohandas Karamchand Gandhi, that is Mahatma Gandhi, father of nation, and Lal Bahadur Shastri. Now you should all know about them. Now we'll start with a short speech by Avinash. Yes, Avinash, you can start, beta. Good morning, ma'am, and my dear friends. Today we all know that we are gathered here to celebrate 151 Gandhi Jayanti. Mohandas Karamchand Gandhi, popularly known as Bapu or Rashtrapita in India. He was a great leader of nationalism against British rule. The great leader was born on 2nd October in 1869 in Porbandar, Gujarat, in India. Mahatma Gandhi is called Mahatma because of his great work and greatness all through the life. He led the biggest mass movement in world. The hallmark of this was non-violence. His life was an inspiration for all of us, and the sacrifices he made are our responsibilities now. Let us contribute for growth to pay a salute to nation's father. A speech is not enough to speak about Mahatma Gandhi's values and deeds, but we as the future of the country can honor him by living life on his principles and lead our country to an incredible nation. So at last I want to say or speak with me Jai Hind and Jai Bharat. Yes, very good. Very good. Well said, Avinash. The values laid by Mahatma Gandhi should be followed by all of us. जो महात्मा गांधी ने values और ideas ले किए थे, हमको उन सबको follow करना चाहिए. खाली इस day को celebrate करके या इस दिन की छुट्टी बना के ही हमको satisfy नहीं होना चाहिए. We should follow the rules and the values inculcated by him. Next is Aditya. Yes, Aditya. Yes, ma'am. You can Good start. morning to all of you. Today I am starting a speech about Gandhiji. Gandhi Jayanti is celebrated every year on October 2 to the honor of legendary leader Mahatma Gandhi, without whom India would not have been free from the clutches of Britishers. His non-violent ways united millions of
people to follow the path of ahimsa and protest against the evil oppression. Mahatma Gandhi left behind a legacy to inspire people and unify with the brotherhood in arms. Mahatma Gandhi has played an important role in major protest movements like Dandi March, Quit India movement, non-cooperation movements that helped India to get its independence. Millions of people used Gandhiji's ideology of non-violence and peace to protest, and at last they regained their long-lost freedom. Voicing his opinion and views projected as a noteworthy leader. His leadership skill can certainly inspire students to take a better and peaceful approach. October 2 has been announced a national holiday in India, but the people across the country and global celebrate the occasion by participating in function theaters, services, etc. On June 15, 2007, the United Nations General Assembly voted October 2, that is Mahatma Gandhi's birthday, to the rightfully observed as the International Day of Non-Violence. The idea behind it was to disseminate and educate the masses about the message of non-violence in protest activities and everyday life. Mahatma Gandhi's ideology of ahimsa inspired Indian citizens to peaceful protest uh, to gain their independence from Britishers. He died on 30 January 1948. Thank you. Yes, very good. Very good, Aditya. You both have told us about Mahatma Gandhi, and I think we know a lot about Mahatma Gandhi, but very little about Lal Bahadur Shastri. So I'll tell you a few things about Shastri ji. Shastri ji was born to Sharda Prasad Srivastav. The name of Shastri's father was Sharda Prasad Srivastav and Ram Dulari Devi in Mughal Sarai. He was born in Mughal Sarai on 2nd October 1904, sharing his birthday with Mahatma Gandhi. And where did he study? He studied in East Central Railway Inter College and Harish Chandra High School when he left to join the non-cooperation movement. He joined non-cooperation movement with Gandhiji. He worked for the betterment of the Harijans at Muzaffarpur and dropped the caste-derived surname of Srivastava. Shastri's thought were influenced by reading about Swami Vivekanand, Gandhi, and Annie Besant. Means Shastri ji, Lal Bahadur Shastri was deeply influenced by which leaders? By, yes, if you are listening, tell me, by which leaders he was influenced? Swami Vivekanand. You all know about Swami Vivekanand, about Annie Besant. Deeply impressed and influenced by Gandhiji, he joined the Indian independence movement in 1920. He served as the president of Servants of People Society, जैसे Lok Seva Mandal, founded by Lala Lajpat Rai, and held prominent positions in Indian National Congress. He held a very prominent position in Indian National Congress. Following independence in 1947, he joined the Indian government and became one of the Prime Minister Nehru's key cabinet colleagues. Then first as railway minister and then in numerous and other prominent positions, including the Home Minister. He led the country during the Indo-Pakistan War of 1965. His slogan was, do you know what was his slogan? What was the slogan of Lal Bahadur Shastri? Jai Jawan, Jai Kisan. Repeat after me. Jai Jawan, Jai Kisan. बोलिए सब जने. जय जवान जय किसान. जय जवान जय किसान. और इसका मतलब क्या होता है? Hail to the soldier, hail to the farmer. मतलब we should respect the farmers also and the soldiers also because they both work for the country. This Jai Jawan Jai Kisan became very popular during the war, and you must have heard many Hindi songs also. बहुत सारे आपने हिंदी के गाने भी सुने होंगे जय जवान जय किसान के नाम से. Became very popular during the war.
The war formally ended with the Tashkent agreement. आप सबने पिक्चर देखी होगी ताशकंद फाइल्स, ये भी एक मूवी आई थी ताशकंद फाइल्स, उसमें पूरा डिटेल बताया गया था. The war formally ended with the Tashkent agreement on 10th January 1966. He died the following day, still in Tashkent, with the cause of his death in dispute. Means how did he die is still unknown. It was reported to be a cardiac arrest, but his family was not satisfied with the preferred reason. He was awarded with Bharat Ratna. He was awarded with Bharat Ratna. तो आप लोगों को गांधी जी के बारे में तो बहुत पता है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री भी हमारे एक बहुत अच्छे लीडर थे, बहुत सिंपल लीडर थे. इनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे बुक्स में, लिटरेचर्स में, तो देखेंगे कैसे उन्होंने अपनी स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट करी, किस तरह से सिंपल लिविंग में वो बिलीव करते थे. प्राइम मिनिस्टर होने के बाद भी वो बहुत सिंपल रहते थे, बिल्कुल खर्चा नहीं करते थे अपने ऊपर किसी भी चीज का, देश के पैसे नहीं लगाते थे. तो वी शुड ऑल्सो, हमें सिर्फ इन डेज को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, हमें उनकी वैल्यूज को अपने अंदर लानी चाहिए, है ना. तभी तो हम कुछ अच्छा काम कर सकते हैं. अगर हम खाली 2 जनवरी 2 अक्टूबर की छुट्टी बना के बैठ जाएं, खाली ये सोचें आज जिनका बर्थडे है ये है, इससे कुछ नहीं होगा. जैसे हम, आपके प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर को एक स्वच्छता अभियान या स्वच्छ भारत अभियान के उसमें कराए, तो कम से कम इस दिन आपको थोड़ा बहुत ये काम करना चाहिए कि और कहीं की नहीं तो अपने घर की साफ सफाई अच्छे से करें. वैसे तो डेली करनी चाहिए, लेकिन आज के दिन हमें और ज्यादा इस बातों का ध्यान रखना चाहिए. नाउ आई विल टेल यू लिटिल अबाउट गांधी जी आफ्टरवर्ड्स. अब बताइए आप कौन किसने स्पीच या इफ एनीबडी वांट्स टू कम विथ. यस, वेरी गुड ध्रुव, आपने गांधी जी की उसको करा है. कहाँ गया, मैं एक मिनट इसको पिन करती हूँ, जस्ट अ मिनट, पिन करने दो, लेट मी पिन अप. वेरी गुड. ओहो, कहाँ गया ध्रुव, लेट मी पिन वीडियो. यस, ये आपने ड्रॉ किया है बेटा ध्रुव. ध्रुव, आर यू लिसनिंग मी टू मी? आपकी पिक्चर, ये पिक्चर गायब हो गई बेटा, पिक्चर दिखाइए. हाँ, जो आपने ड्रॉ करी है. सी, यस मैम. ध्रुव ने बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड ध्रुव. वी शुड ऑल क्लैप फॉर हिम. बहुत अच्छी इसने पिक्चर ड्रॉ करी है गांधी जी की. यस, वेरी गुड. यस, नाउ anybody else want to show what they have done? हाँ, बट गगन आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यस मैम. हाँ जी, चलिए. मैम क्विज. हाँ जी, गांधी जी पर ही करिए, आपने बनाइए क्विज. यस मैम. गांधी जी के बारे में और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं आप बच्चों से? ठीक है, बोलिए. यस. सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मेरे सपनों के भारत. Who said एक मिनट, live सत्य के and साथ, एक मिनट आराम से बोलिए बेटा, समझ में सबको आना चाहिए ना. सत्य के साथ प्रयोग, मेरे सपनों के भारत. Who said these lines? ये पूछना चाह रहे हैं आप? यस मैम. हाँ, बताइए भाई, आंसर पता है? Who said these lines? सत्य के साथ प्रयोग, मेरे सपनों के भारत, किसने कही थी ये लाइंस? महात्मा गांधी ने. महात्मा गांधी. महात्मा गांधी ने. अच्छा, ये बताइए, इसके क्विज के बीच में एक मैं पूछ रही हूँ कि सारे बच्चों को पता है महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? यस मैम. यस मैम. मोहनदास करमचंद गांधी. और वो क्या करते थे, मतलब अपने फ्री टाइम में वो कैसे अपना फ्री टाइम यूटिलाइज करते थे? क्या चीज चलाते थे? चरखा चलाते थे. वेरी गुड, चरखा. चरखा चलाते थे. चरखा चलाने से क्या, चरखा चला के क्या करते थे वो? मैम रुई से धागा बनाते थे. रुई से धागा खादी के कपड़े बनाते रुई थे. से धागा बनाते थे और उस धागे से फिर उस धागे के बने हुए खादी के कपड़े प्रयोग में करते थे. यस, वेरी गुड. हाँ जी. अच्छा, अभी इसने, अविनाश ने भी एक क्वेश्चन पूछा था, ये कौन सी वाली उनकी बर्थ एनिवर्सरी, कौन सी बर्थ एनिवर्सरी है? अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो सबको जवाब पता होगा. मैम 151. वेरी गुड. खाली दो नहीं बोला है भाई, इसका मतलब सबने नहीं सुनी इस बात को. 151. नेक्स्ट. हाँ जी, और गगन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए. When is the International Day of Non-Violence be celebrated? When is the International Day of Ma'am, Non-Violence celebrated? 2 मैम 2 अक्टूबर every year. बेटा 2 नहीं बोलते, 2 अक्टूबर. It's 2 October every year. Yes. Very good. Next question.
What was the title given by Mahatma Gandhi to his Gujarati translation of Unto This Last? नहीं समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन. What was the message given? What was the title given What by was the Mahatma title given by Gandhi Mahatma Gandhi to his Gujarati translation? to his Gujarati translation? Yes, ma'am. किस चीज का ट्रांसलेशन? Ma'am, language. अच्छा, गुजराती ट्रांसलेशन ऑफ लैंग्वेज. हाँ जी. What was the title given by Mahatma Gandhi to his Gujarati translation of language? ये क्वेश्चन है आपका. Yes, ma'am. हाँ जी. किसी को आता है जवाब? No, ma'am. ये तो हमें भी नहीं आता भाई. हाँ बताइए बेटे, आप बताइए. Ma'am, Sarvodaya. सर्वोदया. चलिए आज एक हमने नई चीज लर्न करी कि गुजराती ट्रांसलेशन ऑफ लैंग्वेज इज सर्वोदय. सर्वोदय. सर्वोदय का मीन्स होता है सबका विकास. सब कुछ मिला लिया. सर्वोदय. वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट. Mahatma Gandhi was born in which place? ये तो बहुत सिंपल है, सबको पता होगा भाई. एक नहीं, ऐसे नहीं बोलिए, बताइए कि सबको बता चांस मिलना चाहिए. महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन इन विच प्लेस? कौन सी जगह पे महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? पोरबंदर, गुजरात. पोरबंदर, गुजरात. एक मिनट, ये भी युवराज भी अपनी वो ड्राइंग दिखाना चाह रहे हैं, हम उसको भी देखेंगे. हाँ जी. सी. जय हिंद महात्मा गांधी. वेरी गुड. डॉल क्लैप. अच्छी ड्राइंग बनाई है आपने युवराज. वेरी गुड. देखी सबने? दिखाइए, अभी दिखाइए, दिखाते रहिए. यस, वेरी गुड. आपने बनाई है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Do or die slogan is associated with the name of. Do or die slogan is associated with the name of. Yes, बोलिए भाई. Do or die. किसी को नहीं आता? महात्मा गांधी. मैम महात्मा गांधी. हाँ. महात्मा गांधी. हाँ. True. On August 8, 1942, 75 years ago, Mahatma Gandhi told a crowd at Gwalior Tank Maidan in Bombay, let every Indian citizen himself to be a free man, do or die, remembering the Quit India movement. It was the famous do or die speech that launched the Quit India movement. इसी स्लोगन से क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था और द भारत छोड़ो आंदोलन. सुना है ना आपने सब? सारा आपने सबने हिस्ट्री में पढ़ा है भारत छोड़ो आंदोलन. द लास्ट मेजर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बिफोर इंडिया. और द वेरी नेक्स्ट डे गांधी जी और उनको बहुत सारे नेताओं को जब जेल में डाल दिया गया था. डू और डाई. भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन. यस, वेरी गुड क्वेश्चन. नेक्स्ट. When Mahatma Gandhi and his volunteers started Dandi March. हाँ जी. On which day the Dandi March was celebrated? ये तो भाई सबको पता चलना चाहिए क्योंकि आप सबके एसएसटी में क्वेश्चन है. दांडी मार्च कब स्टार्ट हुई थी? और शॉर्ट नोट अबाउट दांडी मैम मार्च. 1930 में. 1930 डेट पता है? ये तो ठीक बताया आपने. मैम मार्च 12, 1930. हाँ. Yes, ma'am. True. March 12, 1930. मार्च 12. और कहाँ से 1930. कहाँ तक, कहाँ से किस लिए हुआ था ये बताइए मुझे. ये भी बताइए. दांडी मैम मार्च. टू रिमूव द मैम सॉल्ट लॉ. टू रिमूव मैम द सॉल्ट सॉल्ट लॉ. मैम सॉल्ट लॉ को रिमूव करने के लिए. ये सॉल्ट लॉ था क्या? मैम कि इंडियंस ना सॉल्ट बना सकते हैं ना उसे बेच सकते हैं. सॉल्ट पर भी टैक्स लगा था. सॉल्ट पर भी टैक्स लगा था. Yes, ma'am. और गांधी जी का कहना था कि एक गरीब आदमी नमक के साथ रोटी खा लेता है और उस पर भी टैक्स लगाएंगे तो बेचारे गरीब आदमी क्या करेंगे. तो कहां से कहां तक दांडी मार्च हुई थी ये भी बताओ मुझे. मैम ये मैम साबरमती आश्रम से. Dandi तक. 12 मार्च 1930 गांधी जी
और कितने सत्याग्रही थे, पता है आपको कितने सत्याग्रही थे? कितने थे उनके साथ लोग? फिर तो धीरे धीरे बढ़ते गए। स्टार्ट कैसे किसने किया था? सॉल्ट मार्च ऑल्सो नोन एज सॉल्ट सत्याग्रह और दांडी मार्च or Dandi Satyagraha was an act of non-violent civil disobedience in colonial India and it was led by Mohandas Karamchand Gandhi. फिर the 24th day march lasted from कितने दिन लंबी चली थी मार्च? 24 days, 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक, ठीक है। और किस लिए थी? टैक्स रेजिस्टेंस एंड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश सॉल्ट मोनोपोली। और दूसरा रीजन जो इस मार्च का था, दैट वाज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट which needed a strong inauguration that would inspire most people to follow गांधीजी's example। और गांधी जी ने ये मार्च स्टार्ट करी थी अपने 78 या 79 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ। 10 मील हर रोज चलते थे वो और 24 दिन तक चले वो। और ये कितना लंबा किलो चले वो? 240 माइल्स, दैट इज 384 किलोमीटर्स फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी। 241 माइल। हाँ, और डांडी को उस वक्त कहते थे नवसरी एट दैट टाइम। अब ये गुजरात का एक स्टेट है। और ग्रोइंग नंबर्स ऑफ इंडियंस जॉइंड देम अलोंग द। शुरू तो उन्होंने 79-80 पीपल से करी थी, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने उनको अकंपनी किया था और ये बहुत फेमस मार्च हमारे उसमें चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका गगन? Sabarmati ashram is located at. साबरमती आश्रम इज लोकेटेड एट, ये तो सबको पता होनी चाहिए। अहमदाबाद गुजरात में। चलिए, और भी क्वेश्चंस है कि किसी और की क्विज है? यस, लेट्स सी व्हाट यथार्थ राजपूत इज शोइंग टू अस। एक मिनट की वीडियो पिन करने दें। यस, वेरी गुड। ये आपने बनाया है यथार्थ? यस मैम। देखो, इन्होंने हमारे ट्राई कलर पे गांधी जी बनाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एनीबडी एल्स हैज प्रिपेयर्ड अ क्विज और समथिंग? या अभी आपकी फिनिश हो गई? देयर आर मोर क्वेश्चंस गगन? मैंने पोस्टर None बनाया। more. Okay, okay, yes, you can say, speak out. Which of the following books are written by Mahatma Gandhi? Hindi Yes. Swaraj, The गांधी जी, Story of My. नाम नहीं, अपने आप बताने दीजिए इन लोगों को, अपने आप बताने दीजिए एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। कि गांधी जी ने Experiment with कौन सी Truth. बुक्स लिखी थी? मैम एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। Meant with यस, एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। और मैम यंग इंडिया। हाँ, मैम यंग इंडिया। समझ नहीं आया बेटा आपका। मैम यंग इंडिया। यंग इंडिया। हाँ, और कौन कौन से लिखी थी और किस बारे में लिखी मैम थी? मैम एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रुथ तो मैम उन्होंने अपने लाइफ पे लिखी थी। और यंग इंडिया मूवमेंट यंग द एसेंशियल गांधी, पीस, द वर्ड्स एंड इंस्पिरेशन। फिर स्वराज एंड अदर राइटिंग्स, स्वराज भी लिखा था उन्होंने। Ma'am, Hindi Swaraj. द वर्ड्स ऑफ गांधी और नॉन वायलेंस ऑल्सो। हाँ जी, अब आप बताइए गगन, इसका आंसर आप बताइए। Ma'am. हाँ The Story of My Experiments with Truth. हाँ हिंदी स्वराज और सत्याग्रह। हाँ, हिंदी स्वराज, सत्याग्रह। और बहुत सारे कोट्स भी लिखे थे गांधी जी ने। द विट एंड विजडम ऑफ गांधी जी। चलिए, इंडियन होम रूल। इंडियन होम रूल के बारे में आई डोंट नो। नेक्स्ट, चलिए और बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following movement was first played by Mahatma Gandhi? विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स की जगह बोलिए विच ऑफ द मूवमेंट्स वर First played by Mahatma Gandhi. हाँ जी, बोलिए, किसको पता है आंसर?
किसी को नहीं पता? चंपारण चंपारण मूवमेंट, सत्याग्रह, हाँ 1917 चंपारण। चंपारण, फिर खेड़ा मूवमेंट, देन खिलाफत मूवमेंट, देन नॉन कोऑपरेटिव 1917 में होता मूवमेंट। है। हाँ, सिविल डेट्स तो फिर थोड़ी कम याद रहती हैं, लेकिन कौन कौन से थे? चंपारण मूवमेंट, खेड़ा मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम ऑल डन। हो गए? चलिए, एनीबडी Yes, एल्स ma'am. वांट टू से समथिंग? तो आज के दिन हम क्या प्रॉमिस करते हैं, हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे, हम क्या प्रॉमिस करते हैं सब बच्चे? Ma'am, we should keep Ma'am, clean our home. ma'am, follow the path of non-violence. मैं कह रही हूँ हम आज के दिन क्या प्रॉमिस करते हैं? आप क्या क्या कैसे बनने की कोशिश करेंगे? सत्य के राह पे And to चलने के follow लिए, the अहिंसा के राह पे, मार पिटाई नहीं करनी है स्कूल में, दौड़ा भागी नहीं करनी है, अपने आप को प्रूव करना है, और सच बोलना है हमेशा, ठीक है? साफ सफाई का ध्यान रखना है, अपनी देश की बनी चीजों पे ज्यादा ध्यान रखना है। और आर.एन. पनवर ने भी एक ड्राइंग बनाई है, इनकी भी हम देख लें। और बताइए, सबने कुछ कुछ बनाया है? चलिए मैं सबको एक एक बार दिखाती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, ड्राइंग भी बड़ी अच्छी बनाई है सबने। इन वीडियो, वेरी गुड, ये वेरी गुड। आर.एन. पनवर, और किसने बनाया है बताओ फटाफट, जल्दी मैं सबको एक बार दिखाती हूँ। सब अपने गैलरी पे शो करिए। वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छी बनाई है। गरिमा निगम ने भी, मुस्तफा ने भारत का नक्शा बनाया है अच्छा सा। वेरी गुड, सब बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। अमन तिवारी, आपने कुछ नहीं किया? हमने बनाया, मैंने याद नहीं। हाँ, आपने कुछ नहीं किया? यस, ये भी देखने देना अर्श ने क्या बनाया है। अर्श का भी देख लेते हैं जरा, अर्श का भी अच्छा लग रहा है, फिर टाइम ओवर हो जाएगा इससे पहले ही। वैसे हैप्पी गांधी जयंती, यस, हैप्पी गांधी जयंती टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड। और देखिए किसका और अच्छा अच्छा बनाया है। गरिमा, आपने अपना दिखाना बेटा। गरिमा, आपका बहुत अच्छा लग रहा था, जरा दिखाइएगा आपने। मैम मोहम्मद बासित ने भी बनाया। हाँ, मोहम्मद बासित ने भी बनाया है, सबने बनाया है। वेरी गुड, सबने मेहनत करी है। वेरी गुड। बासित का भी देख लेते हैं, चलो एक मिनट। बासित अनपिन वीडियो, अनपिन वीडियो। चलिए सब स्क्रीन पे शो करिए, क्योंकि बेटा हमारा, हाँ वेरी गुड, यस, वेरी गुड। हाँ जी, ये किसने बनाया है? शुभांगी ने क्या बनाया? देखें शुभांगी का भी, शुभांगी ने गांधी जी बनाया ड्राइंग, तो इसका मतलब सबकी बहुत अच्छी है। अमन यादव का भी देख लेते हैं, अमन यादव ने क्या बनाया है। क्रिएटिविटी तो हमारी सारी क्लास के बच्चे, अच्छा इन्होंने चश्मा बनाया है, वेरी गुड, स्केच बनाया है। मैम अतुल सिंह पटेल और यथार्थ ने भी बनाया। अच्छा, अभी देखते हैं अतुल सिंह और यथार्थ सबका देखेंगे बेटा। ये रहा, ये अतुल सिंह का देखे, अतुल सिंह ने गांधी जी बनाए ट्राई कलर में। और यथार्थ, यथार्थ नहीं दिखी मुझे अभी। यथार्थ का भी देखते हैं, यथार्थ ने क्या बनाया है। ये रहा यथार्थ का। यथार्थ का तो देख लिया था मैंने, है ना, ट्राई कलर पे ही तो यथार्थ का तो हमने Yes, दिखा दिया ma'am. था। इसका नहीं दिखाया, युवराज का भी दिखा दिया था, क्षितिज का नहीं दिखाया था। क्षितिज चुपचाप बैठे एकदम। क्षितिज का दिखाते हैं पिन वीडियो। देखिए क्षितिज ने, थोड़ा क्लियर करो बेटा, क्षितिज थोड़ा क्लियर करो, स्क्रीन के पास लाओ। वेरी गुड, वेरी नाइस। और किसका दिखाना है, और किसको शो करना है अपना? हर्ष का तो दिखा दिया, अतुल का भी दिखा दिया, ऋषभ सिंह का भी दिखा दिया। नहीं, ऋषभ का नहीं दिखाया है शायद, एक मिनट। मैम मेरे को पोएम सुनानी थी। हाँ जी, सुनाइए, जल्दी सुनाइए। वेरी गुड, जल्दी सुनाइए, टाइम ओवर होने वाला है, फटाफट सुनाइए। It was a vacation and I had nothing to do. I was आराम at से बोलो, home इतनी and जल्दी जल्दी कुछ समझ ही नहीं आ रही, प्रॉपरली बोलिए। हाँ, it was vacation and I had nothing to do. I was at home and mummy daddy too. My glance caught a sketch of an old person. He appeared to be the gentlest under the sun. Strangely different was the expression in his eyes. Suddenly I felt guilty of all my lies. His lips parted in a smile. So poor he felt me spellbound, dead for sure. Who is he dead?
was my question. Come on, don't you know? Was his reaction. He, he is one who set us free. He is the one who has planted the tree. He is the one who was bold enough, firm and stubborn, but never broke. Truth and non-violence is what he taught. Same were the principles for speech he fought. Preaching and practices for once were the same. His deeds were both name and fame. I have never seen a soul so tall. Oh, Dad, he appears to be the father of all. Who said, child, said my dad. Babu is the name he was, and had I saw the sketch and again. His returning smile was my greatest gain. October 2nd आपकी was the day, my friends, that certainly changed my life, friends. Thank you. आपकी पोएम तो बहुत अच्छी थी, मगर आपकी वॉइस थोड़ी बेटा कम क्लियर थी. थोड़ी और बोल्ड वॉइस में और क्लियर वॉइस में बोलते ना तो और मजा आता. चलिए, सो वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस मीटिंग. विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी आप मुझे गांधी जयंती. मैम गांधी जयंती. चलिए, थैंक यू बेटा. हैव अ नाइस डे. थैंक यू मैम. Thank you, ma'am.